days of September. I will request all of you guys, if possible, can you put your videos on to make it more accessible? So yeah, meet our chief presenter today, Dr. Srirang Pathak. As I mentioned earlier, he is currently working in Search Gadchiroli as a research assistant and medical officer. So I guess बाकी intro उसी से आज सुनना बेहतर रहेगा. So let us begin. Yes, Shira. Thank you so much, Saili, for introducing me. Hello, everyone. This is Dr. Srirang Pathak. I am from the city of Aurangabad, which is in Maharashtra itself. And I've done my MBBS from AIMS Bhopal. I'm working here in Search from past 6 months. Thank you so much for inviting me here to present in today's book club. And the book that I'm going to present today is one of the most profound Marathi book that I have ever read in, say, past 2 to 3 years. And the book has just 47 pages, but the lessons that it has are totally invaluable. The book costs less than 100 rupees, but the lessons are worth more than gold. Okay, so let us get started with the details of what's there in the book. Before we actually start, I would like to ask one question, which I would reiterate at the end of the session, and that is, what do you value, friends? Do you value possession or you value experience? And this is the question I'm going to ask again at the end of today's session. So, starting today's book, the name is Thaiman Changalwadacha. It's a book written by Achyut Godbole. Now, what Thaiman Changalwadacha means is the nuisance created by consumerism. So, the story, my friend, starts post World War II. So, it is after the World War, many governments were established, which were mostly welfare states, and they were mostly capitalist based economies, which emphasized welfare of their citizens and modest growth. And these governments were into power for around 30 years, the time around which people started to grow wary of established order, which was working 9 to 5. Just things revolving around productivity, growth. And that is what brought hippie culture to the forefront. All of us must be aware about Beatles, the famous British rock band, and their uh, coming into popularity was called as Beatlemania. So they apart from that, the hippie culture, hippie movement, which was there in Europe and Western countries, was something that was established as an opposition to the prevailing values that existed in the society, and they tried to emphasize about spirituality, trying to question about who we actually are, and that life is not only about working and contributing to national GDPs. But the problem with this moment was that it was so utopian, they totally got disconnected from the realities and practical aspects of life. And as a result of that, there was a disconnect between the national requirements of the citizens of the country and what people were actually wanting to deliver. And as a result of that the gap was created. Now, what happened as a result of creation of this gap? Because of this gap and its impact on growth, people started to question their credibility, and as a result of that, something came to fill that void. And that's something which I'm talking about, my friends, is nothing but neoliberal consumerism. So it was during this period when uh, I'm talking about 1980s, 1990s, when the emphasis on individual success growth was so much reinforced that growth
was seen as something very important, and hard work for it was seen really prestigious, and individual success was being lauded. Now, that is what has resulted in the type of economics that we get to see in today's world. Uh, so, what neoliberal uh, consumerism is about? Let us have a look at it. तो कैसे होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट होती है वो इंटरवेंशन जब मार्केट में करती है तो उसे केनीसियन थॉट कहा जाता था, जो पहले के वेलफेयर स्टेट्स में देखने को मिलता था। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे 1990s आया वैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया, डीरेगुलेशन पे एम्फेसिस आ गया, तो उसके कारण गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम करने पे ज्यादा एम्फेसिस था। सो दैट एक्चुअली प्रमोटेड प्राइवेटाइजेशन। और इसमें अपेरेंटली ऐसा दिख रहा था कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ऑटोनॉमी आ रही है, और उसके कारण कैसे इट इज गोइंग टू ड्राइव ग्रोथ एंड बेटर allocation of resources, and the growth rate will be increased, ऐसा पोर्ट्रे किया गया था। तो एक था काइनेसियन मॉडल, एक था ये नियोलिबरल कंज्यूमरिस्ट मॉडल। तो हमने ये इवोल्यूशन जाना कि कैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू से 1990s तक इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज होता गया, और कैसे नियोलिबरल कंज्यूमरिज्म इस्टेब्लिश हुआ। तो अब इसमें जो जिस प्रकार की ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियरल ट्रेड्स ह्यूमन के देखने को मिले, उन्होंने कैसे क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय किया, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय किया, मेंटल डिसऑर्डर्स रैम्पेंट हो गए, उसके बारे में ये बुक डिस्कस करती है। तो पोस्ट 1990s क्या होना शुरू हुआ कि लोग इंडिविजुअल सक्सेस को ज्यादा ग्लोरीफाई करने लगे। तो उसमें इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी उसके डिस्कशन के साथ बुक प्रोग्रेस करती है कि उसके डिटेल्ड स्टैट्स के बारे में बात करते हैं अच्युत गोडबोले उनके बुक में, कि जैसे 1960s में अगर हम टॉप 20% जो रिच पीपल है और टॉप 20% जो पुअर पीपल है, इनके वेल्थ का रेशो देखे तो वो अराउंड 3:1 था। लेकिन 1990s आते आते वो लगभग 60:1 हो गया। 1997 तक आते आते 74:1 हो गया। सो जब वो ग्रेविटी एक्सप्लेन करते हैं इनइक्वालिटी की, तब वो इतने प्रोफाउंड स्टैट्स के बारे में बुक में मेंशन किया है उन्होंने। और रही बात जो कंजम्पशन की है, तो कंजम्पशन भी जो टॉप 20% पीपल है वो अराउंड 76% ऑफ टोटल गुड्स और सर्विसेज इन इकोनॉमी कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो बॉटम में आते हैं वो जस्ट 1.5% करते हैं। तो इतनी रैम्पेंट इनइक्वालिटी है। तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ से कि कितना कंजम्पशन और जो गुड्स है दे आर लिमिटेड टू जस्ट सच ए लिमिटेड फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। और इन पॉपुलेशन के ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फर्दर ड्राइव करते हैं इस इकोनॉमी को। तो ये इस प्रकार से जो इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश हुई, इसमें से क्लासिज्म कैसे बढ़ा और उस क्लासिज्म में से लग्जरी क्लास कैसे इस्टेब्लिश हुआ, उसकी बात वो बुक में आगे करते हैं। ये जो लग्जरी क्लास था, मतलब जिसमें बेसिकली जो ग्रोथ होती है वो अल्टीमेटली उसका एस्पिरेशन ये होता है कि लग्जरी आइटम्स का एक्यूमुलेशन, मतलब वेल्थ विल बी सीन इन टर्म्स ऑफ आपके पास कितने मटेरियल आप पोजेस करते हो, कितने लग्जरी आइटम्स आपके पास है, उसके टर्म्स में सक्सेस को डिफाइन करना शुरू हुआ। और उसके कारण ऐसा दिखता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ट्रिकल डाउन करेगी और बॉटम के लोगों तक भी पहुंचेगी। लेकिन वैसा होते हुए हमें अभी तक तो नहीं दिख पा रहा है। और हमें देखने को तो मतलब व्हाट वी गेट टू सी इज क्लाइमेट गेटिंग डैमेज्ड, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स का जो वर्सनिंग हुई है ओवर द लास्ट 2 decades। तो आउटकम्स जो हमें बताए गए थे, जो हमने सोचे थे कि आएंगे, वैसे कैसे नहीं आते हैं।
और वो कैसे डेविएट कर जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे काफी सारे इन डिटेल डिस्कशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लग्जरी क्लास के बारे में डिस्क्राइब जब वो करते हैं, तब वो बात करते हैं कि जो हमारे एस्पिरेशंस होते हैं वो कैसे फ्रेम करते हैं। तो जो हिप्पी कल्चर था, तो वो कहता था कि स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना चाहिए, पर्सनल आइडेंटिटी क्या है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, आर्ट्स म्यूजिक, इस पे उन्होंने एम्फेसिस लाया था। लेकिन एट द सेम टाइम जो यंग एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स थे बड़े बड़े सिटीज में, जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, तो इनके पास में जो थोड़े से वेल स्टेब्लिश थे, तो क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स डाल के कुछ हासिल किया था, तो जैसे ह्यूमंस आर स्टोरी टेलिंग एनिमल्स, तो अल्टीमेटली उनको खुद का वर्थ रखने के लिए, प्रूफ करने के लिए, वो लग्जरी आइटम एज अ रिवॉर्ड देखने लगे, एज अ स्टेटस सिंबल देखने लगे, और वहां से स्टेटस चेंजिंग शुरू हुई। लग्जरी आइटम्स को जितना ज्यादा जो अक्यूमुलेट करेगा वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ऐसे स्टीरियोटाइपिंग स्टैंडर्ड्स बनने लगे, जो कि प्रोपेगेट हो गए सोसाइटी में। तो ओवर नेक्स्ट 30 ईयर्स हमें देखने को मिला कि कैसे कुछ लोगों को, लोगों लोगों के साइकोलॉजिकल जो प्री डिस्पोजिशंस थे, उन्होंने कैसे पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्शन को शेप किया है। तो इतना ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी से आ रहा है, वो हमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में जो लग्जरी क्लास के जो बिहेवियर्स थे, उनका इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है। फिर नेक्स्ट वो आते हैं कि हमारी परस्यूड ग्रोथ क्या थी। तो यही जो लग्जरी आइटम्स है और वॉर इक्विपमेंट्स है, उनकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करना वो सीन एज ग्रोथ। ये ग्रोथ है, ऐसा डेफिनेशन बनाया गया, ऐसा डेफिनेशन दिखाया गया। अब इससे क्या होता है, मिलिट्री बेसिकली जो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होती है, जैसे स्टेटस हो गया, पावर हो गया, तो उसके कारण लोगों को ऐसा लगता था कि पावर डिस्प्ले करना इज ऑल्सो, यू नो, कीपिंग योर स्टेटस। तो लोग, मतलब काफी सारे कंट्रीज मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिए। तो उसके कारण ऐसा हुआ कि बहुत सारी वेल्थ ये मिलिटराइजेशन में चली गई। तो एक बहुत ही प्रोफाउंड और दिल दहलाने वाला जो स्टैटिस्टिक वो शेयर करते, वो ये है कि अगर हम दुनिया का पूरा जो मिलिट्री बजट है वो साथ में कर दे सारे देशों का, और उसका सिर्फ 1% निकाल ले, तो पूरे दुनिया के 8 बिलियन पीपल एजुकेट हो सकते हैं। जस्ट 1% ऑफ टोटल मिलिट्री बजट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इतना सारा पैसा हम किस में डाल रहे हैं? मिलिट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या चेज कर रहे हैं हम? तो ये क्वेश्चंस के अगर आंसर चाहिए, तो वो यहाँ से आते हैं। ये किसने बताया कि ऐसे करना है? ये डायरेक्शन किसने दिखाई, कहाँ से आई ये डायरेक्शन? तो उसकी पूरी हिस्ट्री को एकदम इंसिसिवली डिसेक्शन करते हुए हमें दिखते हैं अच्युत गोडबोले। उसके बाद में 1999 में सैंडर्स और मुनरो के रिपोर्ट के बारे में उन्होंने लिखा है कि कैसे जो लोग ज्यादा सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल वेल्थ को अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो ये लोगों का कम कंसर्न होता है फॉर अर्थ, फॉर इट्स पीपल एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी। तो कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज करना शुरू कर दिया था ये 1999-2000 के अराउंड लोगों ने, ये जानने के लिए कि जो ये ऐसे डिस्पोजिशंस दिखाते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा वेल्थ चेजिंग करने के लिए, उसके बाद में मटेरियल पोजेशंस एक्यूमुलेट करते रहने के लिए, तो उनमें क्या साइकोलॉजिकल किस प्रकार का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है और उनका एटीट्यूड कैसे होता है। तो उन स्टडीज में ये निकल के आता है कि वो उनका धीरे धीरे लेस कंसर्न हो जाते हैं वो। तो मे बी उनका वैसा इनर डिस्पोजिशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कंडीशन हो जाते हैं उस हिसाब से बिहेव करने के लिए। तो ये बेसिकली नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के बारे में उन्होंने बात की है। उसके बाद में उन्होंने एक बंदे की बात की है जिसका नाम था जोसेफ स्टिग्लिट्स, एंड इन्होंने एक रिपोर्ट लिखा था, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। तो इन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे वेस्टर्न देशों के जो पेटेंट्स थे
और लॉस थे वो डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फेवर करने के लिए बने थे और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस करने के लिए थे। तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह हो गया था, एक विशेष साइकिल हो गई थी कि वो एस्पिरेशन वाज ब्रीडिंग ओवर एस्पिरेशन और अल्टीमेटली इतना एक्यूमुलेशन हो रहा है मटेरियल वेल्थ का डेवलप्ड कंट्रीज में, मतलब ग्लोबलाइजेशन का, और जो वर्ल्ड मार्केट है उसका ऐसा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं कि सारी वेल्थ उधर अक्यूमुलेट होते जा रही है एसेट्स में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उधर के लोगों को अपने हाल पे छोड़ा दिया जा रहा है। जिसका बेस्ट एग्जांपल, मैं सॉरी आई एम थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ मैं बुक से, लेकिन जिसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, जो हाउसिंग बबल की यूएस में क्राइसिस हुई 2008 की। वो बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हट जाए, बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, तो लोगों के वो इनकरेक्ट उनकी जो डायरेक्शन है या फिर जो बहुत ही एस्पिरेशन ड्रिवन फिलोसॉफी है, उससे वो ऐसे चीजों में फाइनेंशियलाइजेशन हो जाता है कि जो एक्चुअली एसेट्स ही नहीं होते, डेरिवेटिव्स होते हैं। तो लोगों ने लोन लिए, घर बांधना शुरू किया, इतना ज्यादा लोन दिया बैंक ने कि डिमांड बहुत ज्यादा, मतलब डिमांड घट चुकी थी, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो बैंक के पैसे लुट गए। और फिर सारे कैसे ग्लोबल रिसेशन हुआ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो गए थ्रू आउट द वर्ल्ड उसके कारण। फिर कैसे ओबामा ने फाइनेंशियल फिस्कल स्टिमुलस रोल आउट किया, तो वो एक अपनी एक कहानी है। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि ये जो फाइनेंशियलाइजेशन हुआ मतलब ये जो लेबर होता है, सर्विसेज होती है या फिर गुड्स होते हैं, उसमें वेल्थ, उससे वेल्थ का ना आना, लेकिन डेरिवेटिव से आना, मतलब स्टॉक से आना या फिर डेट से आना, तो जिसमें कोई टैंजिबल गुड नहीं है। ये बस हमारे हाइपर रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाले चीजों से स्टेम आउट कर रहे हैं। वो वाले एसेट्स में पैसे लगाना शुरू हुआ, पैसे से पैसे कमाने की आइडिया शुरू हुई, और उसके कारण कैसे इट एक्चुअली लेड टू मोर सफरिंग। तो वो एक अपनी एक खुद की कहानी है। तो वो ये ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली ये पूरी आइडिया ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट बात आती है जो मुझे लगता है बहुत ही एक प्रकार से सैड तो है ही, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं कि ये कितनी, मतलब हमें इनडिफरेंट कर सकती है इनजस्टिस को लेके, वो हमें देखने को मिलती है। तो एक लॉरेंस समर्स नाम का यूएस का बंदा था जिसने एक मेमो लिखा, और वो मेमो इतना ज्यादा प्रोवोकेटिव था कि उस पे काफी सारी लीगल एक्शन भी हुई यूएस में। तो वो मेमो इस बारे में था कि कैसे वेस्ट जो बन रहा है डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उनकी पॉलिसी उसे फेवर करती है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास भेज दे। क्यों? क्योंकि उस वेस्ट के कारण अगर कोई बंदा, लेट अस सपोज यूएस में उसे डिसीज होता है, तो उसका जो हेल्थ केयर का खर्चा आएगा, दैट विल बी मेनी टाइम्स एज कंपेयर टू समवन हु बिकम्स इल इन अफ्रीका। अफ्रीका में अगर उस वेस्ट के कारण कोई बंदा बीमार होता है और वो अफ्रीका में जाके हेल्थ केयर लेगा, तो वो चीप पड़ेगी उसे। लेकिन यूएस वाले बंदा यूएस में हेल्थ केयर लेना चाहेगा तो उसे महंगी पड़ेगी। तो बेसिकली अफ्रीका में वर्थ कैसे इंसान की कम है और यूएस में कैसे वर्थ ज्यादा है, वो दिखाने की कोशिश यहाँ से हमें देखने को मिलती है। और इसलिए उनके पॉलिसीज ऐसे फेवर करते हैं कि जो वेस्ट है इट शुड बी लेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वहां पे वैसे भी लोग सस्ते में निपट जाते हैं। तो ये दिस लेवल ऑफ इनडिफरेंस कैसे नियोलिबरल कंज्यूमरिज्म और चाओनिज्म से डेवलप हो सकती है, ये हमें इसका दर्शन करा दिया है बुक में। उसके बाद में ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कैसे मेजोरिटी ऑफ द पीपल तो इकोनॉमी के बाहर ही रहते हैं, 60 to 70% पीपल तो इकोनॉमी का ही पार्ट नहीं है, और कैसे सिर्फ टॉप 20% 76% कंजम्पशन करते हैं।
तो इतने ज्यादा हमें इनइक्विटेबल स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो ये लोगों के लिए क्या करना चाहिए जब इसके बारे में सॉल्यूशंस की बातें करते हैं? तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग थे जैसे मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने कोशिश की कि रूरल बैंक एक्सपेरिमेंट्स कर किए जाए जिससे नए मार्केट्स बनाए जाए। लेकिन क्या फ्री मार्केट बनाना सॉल्यूशन होगा? वो 60 to 70% पीपल में भी, मतलब बेसिकली जो ग्लोबल स्टेज पे हो रहा है वही सेम सिस्टम हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं लोकल लेवल पर, जिससे हम हमेशा एक फ्रैक्शन ऑफ पीपल को आउट ऑफ इकोनॉमी रखना चाहेंगे, हमेशा इनइक्वालिटी बनाए रखना चाहेंगे। तो इसके बारे में वो बुक ऐसे प्रोग्रेस करती है कि ये इनइक्वालिटी बना के रखना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वहां से बात आती है इंटरपर्सनल रिलेशंस की, और एस्पिरेशंस की, और सक्सेस कैसे डिफाइन की जाती है, फ्रीडम के सिंबल्स क्या देखे जाते हैं। तो इट इज इसेंशियल कि ये आइडिया बनी रहे कि मेरे पास नहीं है। अगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास होगा तो मैं खरीदूंगा नहीं, लेकिन मुझे ये सोशल मीडिया को, एडवर्टाइजिंग फर्म्स को और कॉरपोरेट कंपनीज को हमेशा बताना पड़ेगा कि अगर एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं कम हूँ, मेरी वर्थ कम है, और मैंने डिससेटिस्फाइड रहना चाहिए। और मैं डिससेटिस्फाइड रहूंगा तभी मैं एफर्ट्स डालूंगा कि नहीं, मुझे वो पर्टिकुलर चीज मिलनी चाहिए, और तब जाके मैं उसे कंज्यूम करूंगा, उससे प्रॉफिट्स उनको मिलेंगे। तो ये पूरा डिसफंक्शन ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका मैं विक्टिम बन रहा हूँ। लेकिन मैं चॉइसेस भी ऐसे करूंगा कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय सिर्फ बढ़ती जाए, तो मैं और ज्यादा फंसते हुए जाऊंगा। डाउनवर्ड स्पाइरल है इसलिए ये। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे एस्पिरेशंस क्या है। डू आई वांट टू चेज लग्जरी गुड्स? क्या सिर्फ मेरे पास चीज होना मेरा वर्थ डिफाइन करती है, भले मैं उसको एक्सपीरियंस ही ना कर पाऊँ? मेरे पास लोग दिखाने के लिए बीएमडब्ल्यू है, रोल्स रॉयस है, बड़ा बंगला है, भले मैं 16 घंटे काम करता हूँ दिन के, लेकिन मेरे पास है दिखाने की, तो उसका एक्सपीरियंस मैं नहीं ले पाता। बट यस, आई पजेस थिंग्स। तो ये पोजीशन में मुझे डिफाइन करनी है, मेरी वर्क एक्सपीरियंस में करनी है, वो हमें सोचना पड़ेगा, हम में से हर एक पर्सन को। उसके बाद में नेक्स्ट बात जो की है उन्होंने, वो गैरी प्रकर नाम के एक आदमी के बारे में बात की है, जिसको 1922 में उन्होंने कंज्यूमरिज्म और मैरिज के ऊपर कुछ स्टडीज किए थे, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उसमें उन्होंने माइंड ब्लोइंग चीज, जिस माइंड ब्लोइंग चीज के बारे में बात की, वो ये थी कि कैसे लव एंड केयर का भी कमोडिफिकेशन किया गया है, और कैसे अ, इनको कमोडिफाई करने से प्रॉफिट होता है वो दिखाया गया है। कि अगर, मतलब लेटर से दो पीपल है और उनको, उनके बीच में अगर ये इस टाइप का लव एंड केयर वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो उससे पोलिसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, उसका खर्चा कम होगा। पोलिसिंग माने मेरा पैसा कोई दूसरा चुरा के ले गया, या फिर सामने वाले का मैं चुरा के लेके जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है मेरे में और सामने वाले पर्सन में, तो मैं वैसे करने की टेंडेंसी नहीं रखूंगा। तो जो पोलिसिंग करने का खर्चा होगा वो नहीं आएगा। और ये कैसे प्रॉफिटेबल है, इसलिए लव और केयर का भी कैसे कमोडिफिकेशन हुआ है, और उस दृष्टि से कैसे इवन ह्यूमन वैल्यूज को और रिलेशंस को देखा जाने लगा, उसके बारे में उन्होंने बात की। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। तो पहले एजुकेशन का बेसिस इंक्वायरी होता था, इसलिए हमें देखने को मिलता था कि कैसे 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में लोग अपने क्यूरियोसिटी से लेकर इतने बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज कर पाए, और इवन बहुत सारे सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल चीजें निकल कर आई। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिलता है कि कैसे हमारा एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है प्रॉफिट बेस्ड इंडस्ट्रीज के कारण।
तो अभी हमें बेसिकली इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी इनसे कोई मतलब नहीं रहा है। ऑल दैट मैटर्स इज कैसे हम वो स्किल्स ले पाए जो मार्केट में अभी रिक्वायर्ड है। तो मैं मेरे खुद का कैसे कमोडिफिकेशन कर पाऊँ, वो स्किल्स में कैसे एक्वायर करूँ जिससे पैसा मिलता हो, प्रॉफिट आता हो। और मुझे यही दिखाया जाएगा कि यही कैसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे सोशल मीडिया, मास मीडिया सबके थ्रू यही प्रोपेगेंडा हमें दिखाया जाता है कि कैसे वही एजुकेशन काम का है जिससे मुझे पैसा मिलने वाला है। और यही हमारे जो सोशल रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म है वो करते हैं। इसलिए हम पैकेजेस को ग्लोरीफाई करते हैं। पर्पसफुल लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन पैकेजफुल लाइफ जरूर होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से आया है? ये इसी कंडीशनिंग का पार्ट है जो न्यूलिबरल कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड है। उस हिसाब से एजुकेशन में भी प्रॉफिट की कंसेप्ट आई, और एजुकेशन का इस्तेमाल बस प्रॉफिट को एम्पलीफाई करने के लिए होने लगा। उसमें से भी ह्यूमन फोकस और जो वैल्यूज थे वो हमें डीके होते हुए दिखे। नेक्स्ट उन्होंने बात की है ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रोम के बारे में, जिसकी आर्ट ऑफ लविंग बुक हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। तो उनके बारे में उन्होंने बात की है कि कैसे उन्होंने सेन सोसाइटी की बात की है, और एंटी कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म, वॉर मॉन्गरिंग और लग्जरी सीकिंग हेडोनिस्ट सोसाइटी, इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे एड्रेस किया है, और इनमें से कैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर निकल के आते हैं। तो एक सोसाइटी कैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, उसका हमें काफी अच्छे से एनालिसिस में उन्होंने किया है। और उसमें उन्होंने एरिक फ्रोम्स के मल्टीपल स्टडीज को काफी सारे डिटेल में उन्होंने डिस्कशन किया है। तो बेसिकली द पॉइंट जो यहाँ पे वो रखना चाहते हैं वो ये है कि कैसे एक नियो लिबरल कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी हमें लोब साइडेड बना के एक्सेस को ग्लोरीफाई करके एक ही डायरेक्शन में लेके जाती है और बैलेंस बिगाड़ती है, जिसके कारण इतने ज्यादा रैम्पेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। उसके बाद में अब एक काफी अच्छी चीज जो एरिक फ्रोम ने सामने रखी थी, एक क्वेश्चन जो लोगों के सामने आता है इन कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, इज टू हैव और टू बी। ये वही सेम क्वेश्चन है कि टू पजेस और टू एक्सपीरियंस, कि मेरे पास में है, मतलब मैं कुछ पाने के लिए रेस में रहूं, लेकिन मैं मेरी वैल्यूएबल मतलब जो एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी है वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए। और जब मैं सोचूंगा कि इसको मैं एक्सपीरियंस करूंगा तब मेरे पास में वो टाइम ही नहीं बचा होगा, या फिर वो कैपेबिलिटी नहीं बची होगी एक्सपीरियंस करने की। तो ये एक बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन एरिक फ्रोम रेस करते हैं, जो कि सेम कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रेस किया है। और आ, हमें देखने को मिलता है कि वो उनको प्रेज भी करते हैं, क्योंकि जो एरिक फ्रॉम थे उनके स्टडीज अराउंड 1955 में आए हुए हैं, विच इज 30 इयर्स ये सब होने के पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे आउटकम। तो कैसे प्रेडिक्टेड आउटकम्स थे हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम ये मतलब कितना, ये जो मीम है हम कह सकते हैं, मीम एज एन आइडिया ऑफ प्रॉफिट कितनी ज्यादा प्रोवोकेटिव है, परसुएसिव है, और कैसे वो ह्यूमन साइकी को कितना लेवल तक मैनिपुलेट कर सकती है, इसका बहुत ही अच्छा हमें डेमोन्स्ट्रेशन इस चीज से मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोफाउंड आइडिया जो बुक में आती है वो है 1993 में टिम केसर और रिचर्ड रैन की स्टडीज, जिसको उन्होंने नाम रखा था द डार्क साइड ऑफ अमेरिकन ड्रीम। तो उसमें उन्होंने एस्पिरेशन इंडेक्स के बारे में बात की है कि कैसे हैं एस्पिरेशंस, किस प्रकार के एस्पिरेशंस हमारे लाइफ को डिक्टेट करते हैं और उससे हमारे मेंटल आउटकम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उनके स्टडीज में भी ये निकल के आया कि जो लोग मनी चेस करते हैं वो फीलिंग्स, फैमिली, फ्रेंडशिप को लेस इम्पोर्टेंस देते हैं, और अल्टीमेटली उनमें ज्यादा प्रिवेलेंस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी देखने को मिलता है। तो ऑल्दो ये स्टडी इसके काफी बाद में क्रिटिसिज्म्स भी आए उनके मेथोडोलॉजीज को लेके,
जो उन्होंने एस्पिरेशन इंडेक्स बनाया था। लेकिन उसमें मतलब आप डिस्पाइट ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, अल्टीमेटली लोगों ने इस कंक्लूजन को सपोर्ट किया था कि यस, जो कंज्यूमरिस्ट चाउनिस्ट पीपल होते हैं वो ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होते हैं और उसके कारण मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का प्रिवेलेंस उनमें बढ़ जाता है। और मुझे एक आइडिया जो काफ़ी फैसिनेटिंग लगी इस बुक में डिस्कस की हुई थी, वो उन्होंने कहा था सीसॉ ऑफ इमोशंस। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं कि सफरिंग क्या होता है। तो अगर हम सफरिंग को इंस्टेबिलिटी के टर्म्स में देखें, तो ये जो सीसॉ ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस करना है कि मेरे पास कोई चीज आई तो मुझे एक मोमेंटरी थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अब हमेशा अगली एक चीज होगी जो मेरे पास नहीं होगी, तो उसके कारण मुझे सैड लगेगा। तो ये जो सीसॉ ऑफ इमोशंस है, ये कैसे मेरे इकोनॉमिक बिहेवियर को ड्राइव करता है और इससे कैसे मेरा कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर मैनिफेस्ट करता है, ये उसका बेसिस कैसे है सीसॉ ऑफ इमोशंस, और कैसे एक परपेचुअल सफरिंग साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो ये कंसेप्ट हमें उन्होंने डिस्कस किया है बुक में। तो मुझे ये काफी फैसिनेटिंग लगा कि सफरिंग मतलब क्या। जब मैं ये बात सोचता हूँ कि मैं सफर करता हूँ मतलब क्या करता हूँ, तो मैं क्या सीख करता हूँ, तो इसके बारे में सोचने की मुझे लगता है उन्होंने काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है बुक में। नेक्स्ट, अब कुछ सोसाइटी और इंडिविजुअल इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। तो एक श्वार्ट्ज नाम का बंदा था, उसकी स्टडीज है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो लोग प्रॉफिट चेजर्स बन जाते हैं उनमें कोऑपरेशन, बेनिफिसेंस, गुड फॉर ऑल, ये सारे कंसेप्ट कम हो जाते हैं और वो ह्यूमन का कोर नेचर सेल्फिश ही है ऐसा जस्टिफाई करने लगते हैं और वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनते हुए जाती है। तो उनको हर जगह कैसे सेल्फ सेंटर्डनेस, कॉम्पिटिटिव नेचर दिखता है, उसके बारे में श्वार्ट्ज की स्टडीज उन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट चीज आती है अबाउट वही कि इंडिविजुअलिज्म, कंपटीशन और सेल्फिशनेस इनकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। इसके और भी कुछ स्टडीज है, शेल्डन, मार्गरेट, और 2005 में स्टडीज आए जिन्होंने दिखाया कि कैसे जो लोग ज्यादा इंडल्ज कर जाते हैं कंज्यूमरिज्म में, कंपटीशन में, ओवर एस्पिरेशन में, ओवर एम्बिशन में, तो उनमें केयर का कंपोनेंट कम हो जाता है और फीलिंग शेयर करना, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना, ये सारे जो फैमिली में वैल्यूज होते हैं वो कैसे डिटोरियोरेट कर जाते हैं। तो उसके कैसे मल्टीपल एविडेंसेस और स्टडी साइट किए उन्होंने, तो वो मुझे लगता है कि काफी इस बुक की क्रेडिबिलिटी को एनहांस करता है। उसके बाद में ये इक्वेशन के बारे में उन्होंने वापस बात की है कि कैसे वेल्थ इज इक्वल टू सक्सेस। ये पूरी इक्वेशन ही इस इकोनॉमिक पैराडिम से निकल के आती है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो, ज्यादा से ज्यादा पोजेस करो, और उसको कोई एंड नहीं है। एंडलेस कंज्यूमरिज्म, एंडलेस प्रोडक्शन, और ना एनवायरनमेंट के बारे में के बारे में सोचना चाहिए, रिसोर्स मिस मैनेजमेंट होता है उसके बारे में सोचना चाहिए। ऑल यू हैव टू केयर अबाउट इज प्रॉफिट। तो ये कैसे हमें वन माइंडेड करता है और कितना इतना ज्यादा नैरो फोकस हो जाता है हमारा कि एंड में मतलब बेसिकली द टोटल ये कंसेप्ट ही कैसे एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का डिस्क्रिप्शन लगने लगता है, वो इसमें से काफी ज्यादा एविडेंट होता है। फॉलोइंग दैट उन्होंने बात की है कि अथॉरिटी, कंफॉर्मिटी, उसके बारे में बात की है, वर्क स्ट्रेस के बारे में कि फिर जैसे अब एक बार ये इस्टेब्लिश सोशल मैकेनिज्म हो चुका है और हमें ऐसे लगता है कि यही वे है, इससे ही सबका अच्छा होने वाला है, ऐसा जो दिखाया जाता है, तो उसके कारण मतलब लोग फंस जाते हैं। तो अपने काम की जगह पर ऑल्दो उनको वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फुलफिलिंग नहीं लगता है, लेकिन वो गोल ही नहीं है एंड में। गोल क्या है? पजेस करना चीजों को, इज द गोल। तो भले मेंटल हेल्थ की बैंड बजे, भले बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बॉस की गालियां खानी पड़ रही हो, तो वो सहना, ये मैसोचिज्म को ये जो सहने वाला जो मैसोचिज्म है उसको ग्लोरीफाई किया जाता है।
कि जो ज़्यादा सहने का कैपेबल है, वो ज़्यादा वर्दी है। जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, प्रॉफ़िट लाएगा कंपनी के लिए, वो ज़्यादा वर्दी है। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे पर्टिकुलर ये इकोनॉमिक गोल्स को रखते हुए कैसे ये सारे जो सोशल रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म्स है ये डेलिबरेटली डिजाइंड है और हमें कंडीशन कर दिया गया है इनको परपेचुएट करने के लिए। और फिर इंटरजेनरेशनल इसका कम्युनिकेशन भी कैसे होता है इन कंफॉर्मिटी के बेसिकली स्टीरियोटाइप्स का ओवर द जनरेशंस। इसके भी स्टडीज उन्होंने मेंशन किए कि 2002 में कैसर और कोएस्नर और लेक्स इन्होंने स्टडीज किए थे जिसमें उन्होंने इस बारे में बात की थी कि ये जो आइडियाज ऑफ कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस, अथॉरिटी, सर, मैम, हायरार्कीज ये कहाँ से आ रहे हैं और ये कहाँ से जस्टिफाई किए जा रहे हैं, उसका बेसिस क्या है। तो उसके भी पीछे कैसे नियोलिबरल चाओनिज्म और कंज्यूमरिस्ट फिलोसॉफी अंदर एम्बेडेड है। तो उसके उसका डिसेक्शन करके उन्होंने हमें दिखाया है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी आई, मैकेनाइजेशन हुआ और 1900s के शुरुआत में लोग बोलते थे कि इस सेंचुरी के एंड में 15 आवर वर्क वीक होगा। कहाँ पर है 15 आवर वर्क वीक? अभी तो नारायण मूर्ति तो बोलते कि 90 आवर वर्क वीक होना चाहिए। तो ये जो सपने दिखाए गए थे ये कैसे टूटे हैं और ये क्यों टूटे हैं और वो कैसे टूटते ही रहेंगे जब तक कंज्यूमरिज्म का भूत सवार रहेगा। तो अगेन उसका डिस्क्रिप्शन काफी प्रोफाउंडली उन्होंने किया है। लेकिन मतलब दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये लगती है कि ये सब 47 पेजेस में उन्होंने लिखा है। तो मतलब 47 पेजेस में इतनी सारी चीजें कन्वे करना ये मुझे लगता है सच में बहुत ही बड़ी बात है। और अब ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ ये इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए कि न्यू मतलब कंज्यूमरिज्म का साइड इफेक्ट जो हुए, इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी, एजुकेशन कैसे खराब हुआ, फैमिली रिलेशंस खराब हुए, वैल्यू डिके हुए, मॉरल डिके हुआ सोसाइटी का। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ उन्होंने प्रॉब्लम्स ही एड्रेस किए हैं, जाते जाते बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने काफी अच्छे से ये एड्रेस भी कर दिया है कि फिर सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, हमने कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो वो उसमें डिस्कस करते हैं कि डाउन शिफ्टिंग एक कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करते हैं कि बस क्या होता है, मेरा बस क्या है। बस माने मेरी कैपेबिलिटी, पावर, स्टेटस नहीं। बस मतलब इनफ। मैं इनफ किसे समझता हूँ? मेरी नीड्स, नीड्स में मेरी खुद की और सोसाइटी की समझता हूँ क्या। जो कमोडिटीज है, गुड्स है, सर्विसेज है, इसेंशियल सर्विसेज मेरी रिक्वायरमेंट और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट का है, वो मुझे समझ में आती है क्या। और जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वो ग्लोबल माइंडसेट ये याद रखने के लिए कि मैं साइलोज में नहीं हूँ जो अकेला कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ कंज्यूम करता हूँ तो कोई आदमी है जो उसे बना रहा है, जो वो सर्विस मेरे तक पहुंचा रहा है। उनके बारे में भी सोचना है, वो भी इंसान इंसान है, उनके भी नीड्स है। तो यहाँ से वो स्टेम आउट करने वाला है कि मैं क्या अप्रोच रखूं टुवर्ड्स कंजम्पशन और उसको मैं कैसे कंट्रोल में रखूं और कैसे मैं उन लोगों को वापस उनके नीड्स फुलफिल वो कर पाए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूं। तो उन्होंने डाउन शिफ्टिंग की बात की है कि कैसे मैं मेरे एस्पिरेशंस को चेक में रखूं। मैं कैसे मेंटली अगर मैं बैलेंस्ड रहूंगा, मेरे एस्पिरेशंस को चेक में रखूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो काफी सारे यूजलेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कम हो जाएंगे। ऐसे वो बात करते हैं। और नेक्स्ट वो बात करते हैं कि बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इनका अल्टीमेटली गोल ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट्स होना चाहिए। तो ये जो अनक्रिटिकल जो प्यार है फॉर प्रॉफिट, वो कैसे कन्वर्ट होना चाहिए टुवर्ड्स ह्यूमनिस्ट पैराडिम्स, और कैसे ह्यूमन वेलफेयर को या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को हमने सेंटर पॉइंट बनाना चाहिए। तो उसको, उससे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, वो उन्होंने कहा है कि
इसलिए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 गोल्स कि वो हम एड्रेस करना चाहते हैं. वी वांट ग्रोथ, वी डोंट वांट पीपल टू हैव बैड लिविंग कंडीशंस. पर उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई इतनी लग्जरी चेज करेगा कि किसी को अपनी नीड्स भी फुलफिल ना हो पाए. तो all sustainable development is not about no growth. It is about just the right amount of growth, जो कि क्लाइमेट को भी खराब नहीं होने देगी और इनइक्वालिटी को भी स्प्रेड नहीं होने देगी और जो भी सोशल इविल्स है उनको न्यूसेंस नहीं क्रिएट करने देगी. तो वो जो सोल्यूशन प्रपोज करते हैं अगेंस्ट दिस मॉन्स्टर ऑफ न्यूलिबरल कंज्यूमरिज्म इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद डाउन शिफ्टिंग. एंड ही सेज दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. और ये फिलोसॉफी को लेके आगे जो फ्यूचर है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं. तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस डाउन शिफ्टिंग शुड बी द नेक्स्ट पैराडाइम दैट शुड बी ड्राइविंग जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ ग्रोथ, रिप्लेसिंग न्यू लिबरल कंज्यूमरिज्म. और जैसे मैंने दोस्तों आपको कहा था कि मैं एंड में आई एम गोना रेज दैट क्वेश्चन अगेन, व्हाट डू यू वैल्यू? इज इट पोजीशन और एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच. Thank you, Sriram, for such a profound discussion of insights of the book by अच्युत गोडबोले. तुमने बहुत ही engaging discussion रखा और all the themes that is explained by अच्युत गोडबोले in the book वो बहुत ही आसान तरीके से हम तक पहुंचाए. Thanks for taking out time to discuss it here. जब तुमने ग्लोरी ऑफ पैकेज का पॉइंट बोला तब एक बात मेरे दिमाग में आई कि वी आर हाउ फॉर्चुनेट वी आर बीइंग अ निर्माणी. वी कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस between that glory of purpose and glory of package. Like unknowingly So हम true. इन सब के शिकार होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. जब तक एक आज तुमने एक बुक के बारे में डिस्कशन किया तब शायद मुझे लगता है जो निर्माणीज नहीं रहे होंगे या हम निर्माणीज बनने से पहले हम भी इसी के शिकार बन चुके थे, लाइक एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई गेस वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी द या पार्ट ऑफ वी एक्चुअली आर. अब और इस मुझे ऐसे लगता है कि इस बुक के अगर एप्लीकेशंस की भी हम बात करते हैं तो हमेशा जो क्लेम्स है स्पेशली हमारे करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके, उसको लेके हमेशा हमने सतर्क रहना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली जो वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं जैसे मैरो हुआ या फिर मतलब मेडिकल एजुकेशन का स्पेसिफिकली हम देखें जो भी प्लेटफॉर्म्स है, तो वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट वो जो चीजें बोलते हैं उसको लेके हम क्या सोचते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे तुमने सच में कहा कि वी आर एक्चुअली वेरी लकी कि हम निर्माणीज है, तो वी हैव गॉट दैट इनसाइट अबाउट इट. Also, I'll be very happy if there are any questions or someone wanna ask something. I'll be happy to take them. Anybody else want to talk or discuss something? Yes. बट या आज के डिस्कशन ने एक्साइटमेंट तो बढ़ा ही है टू एक्सप्लोर द बुक. यस डेफिनेटली. अगर मतलब मराठी में नहीं समझ आएगी तो मैं तो कहूंगा कि गूगल ट्रांसलेट कर लेना. 47 ही पेजेस है, रोज एक एक पेज भी गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ लेंगे तो बढ़िया है. लेकिन डेफिनेटली इट्स अ मस्ट रीड बुक क्योंकि मतलब उसका जो इम्प्लीकेशन है वर्ल्ड व्यू फॉर्मेशन में मुझे लगता है काफी ज्यादा है. तो डेफिनेटली उसको नॉन मराठीज ने भी पढ़ना चाहिए. यस, और हमारे नॉन मराठी लोगों के लिए तुमने इस बुक को पूरा इंग्लिश और हिंदी में हमें समझाया, तो वो बड़ी बात थी हमारे लिए.
हाँ मतलब नो वरीज एट ऑल। बताया था, मैं एक्चुअली इंग्लिश में शुरू किया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मे बी इट्स बेटर टू गो हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि ये बुक सब तक पहुंचना काफी जरूरी है। आज तुम्हें सुना तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सब तक पहुंचना जरूरी है। बहुत सारे काफी ऐसे फैक्ट्स थे, जैसे कि मैंने पहले यस। बोला कि पैसिवली हम उसी के शिकार बनते थे और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसी चीजें हमारे साथ नोइंगली की जा रही है। सो So ट्रू। yeah. Any questions? बाकी किसी को अगर पद्मजा को हाय कहना है तो कह सकते हैं। मैं एक्चुअली मुझे नहीं पता कैमरा कैसे स्विच करना है इसको, लेकिन ये पद्मजा है यहाँ पे। हम सेशन के बाद सबको पूछते हैं, एज इट इज योर फर्स्ट सेशन ऑफ नॉलेज क्लब, आई लाइक टू टेल यू, Yogen, Janvi, should we start with the discussion about the books we have read in the last month? Hello. यस। हाँ सायली, हम कर Hi, सकते Janvi. हैं। तो तुम बट कैसे मैं शुरुआत अभी करते हैं? करंटली मैं कोई बुक पढ़ नहीं रही हूँ फॉर मी। Okay. Next, Aniket. आई एम स्टिल रीडिंग। मैंने मतलब निर्माण में था तो एक बुक रिकमेंड की थी, सैपियंस, तो करंटली आई एम रीडिंग दैट वन। तो नेक्स्ट Oh, nice one. या Sapiens was Yogen, the first book I read in undergrad, so it's really close to my heart. माय बैड, मुझे बहुत लेट पता चला था। सो अरे कोई नहीं, वो पता चलना ही बहुत बड़ी बात है उस बुक के बारे में। मतलब उस बुक को पढ़ना कभी भी शुरू करो, बस मतलब अपॉर्चुनिटी मिले उस पढ़ने की इज इम्पोर्टेंट। एंड इवन आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट दैट बुक, क्योंकि तुम लोगों ने ऑफ कोर्स पढ़ी होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा डिस्कस करके। सो मुझे ऐसा लगता है हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा साहिली से ये बात करते रहता हूँ कि युवल नोआ हरारी ने उसका काफी ट्रैजिक एंड किया है, तो उसके 3 बुक साथ में पढ़ने पड़ते हैं, फिर होमो डेउस और 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तीनों बुक सबको ही पढ़ ले, फिर तीनों बुक साथ में डिस्कस करते हैं। मेरे भी बाकी के 2 पढ़ने के बाकी है, पढ़ने हैं। मतलब सैपियंस का काफी ट्रैजिक एंड है, तो मुझे बुरा लगेगा सिर्फ सैपियंस डिस्कस करने। तीनों बुक्स पढ़ने के बाद श्योरली ये कर सकते हैं। यस, उसका पूरा एक दिन अपन पारायण कर लेंगे। Sure. We'd love to do that. यस। Okay, so next, Ritisha. Hi, Ritisha. Hi, Saili. Very insightful session, Sriram. Thank you for that. Sorry, थैंक hello. यू। Yeah, hello. थैंक यू फॉर लिसनिंग। I'm currently reading Les Miserables by Victor Hugo. Can you be a little loud, please? I can't hear you, Ritisha. Hello. Okay. Hello. आवाज येता है? Yes, yes, yes. I'm currently reading Les Miserables by Victor Hugo. It is like a fiction book. Cool. Next, Per. Hi, Per. हेलो। Hello. अभी मैं एकेडमिक मतलब ये नॉवेल्स या ये नहीं पढ़ रहा। अभी मैं एक मशीन लर्निंग की बुक है वो थोड़ी सीख रहा हूँ। और ये और द स्पाई हु केम इन फ्रॉम कोल्ड का ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। Oh, nice. The Spire. द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड। Okay. John Steinbeck. Pardon?
It's by John Steinbeck, right? I'm not able to get you. The book is written by John Steinbeck, right? John Steinbeck is the author. Yep, 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 yep. Yeah. Nice. So next, Yogen. Hi, Yogen. Okay. Mrinali. हॅलो Hello. सायली. हाय. बुक कुठलं रीड करत आहेस तू सध्या? सध्या तर 7 हॅबिट्स स्टार्ट केलाय जस्ट 2 दिवस आधी. हो. 7 हॅबिट्स मधली मला असं वाटतं की विन विन सिचुएशन शुड बी समथिंग वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, और वो मुझे लगता है कि ये रैम्पेंट एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म से हमें बचा सकती है. दैट इज व्हाट वी नीड टू एम्ब्रेस. विन विन सिचुएशन फॉर ऑल. मैंने अभी 2 दिन से स्टार्ट की है. Okay. So next book